Assalamu alaikum students. Our today's topic for 11th class is leaf. In this leaf we are going to discuss structure of the leaf venation, types of leaves, phyllotoxy and modifications of the leaves. Let us start with the structure of the leaf. First we should know what the leaf is. A leaf is a lateral green, generally flattened structure borne on the stem. A leaf is a lateral green, generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. It develops at the node of the stem and bears a bud in its axil. Leaf originates from the shoot apical meristem and is arranged in an acrophytal order of the stem. These leaves are the most important vegetative organ for photosynthesis. क्या पढ़ा हमने? लीफ जो है क्या है? Lateral green, generally flattened structure borne on the stem and most important vegetative organ for photosynthesis. It develops at the node and bears a bud in its axil. Now the structure of leaf. अगर आप इस डायग्राम की तरफ देखोगे तो दिस इज द स्टेम. यहाँ से यहाँ निकलता है. दिस इज कॉल्ड एज पीट्यूल और मेसोपोडियम भी इसे कहा जाता है. पीट्यूल एंड दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज लैमिना. लैमिना और लीफ ब्लेड भी इसको कहा जाता है. इट इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ. Green expanded part of the leaf. It is supported by veins and veinlets. These are the veins and veinlets. The prominent vein in the middle of the leaf blade is called midrib. This one. This is called as midrib. What these veins do? These veins provide rigidity and strength to the leaf blade and also act as a channel for transport of water, minerals and food material. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. ये तो आपको याद रखना है. This lowermost part, this part where the leaf is attached with the stem, इसे हम कहते हैं leaf base. This lowermost part where the leaf is attached to the node of the stem, इसे leaf base कहा जाता है. Sometimes you may look, कभी कभी आपको दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि हर बार. It may bear two lateral small leaf-like structures. This structure, leaf base may bear two small leaf-like structures. इनसे कहा जाता है stipules. कभी कभी may bear some two lateral small leaf-like structures. इनको क्या कहा जाता है? stipule. एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है. इन मोनोकाट्स leaf base expands to form sheath covering the stem wholly or partially. और ये जो leaf base है, in leguminous plants it is sloven. leguminous में जो हमारे पास दालें होती हैं उनमें sloven leaf base होता है. उसे pelvinous कहा जाता है.
स्लोगन लीफ बेस, उसे पैल्वेनस कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। हाँ, हमने क्या पढ़ा कि लीफ जो है इट इज़ अटैच टू द स्टेम एट द बड। यहाँ पे जो है जहाँ पे अटैच होता है इस बड से, बड ऑफ द स्टेम, वहाँ पे उसे लीफ बेस कहा जाता है। ये लीफ बेस, इसमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। इन ल्यूमिनस प्लांट्स दिस लीफ बेस इज स्लोगन, लिहाजा इसको पल्वेनस भी कहा जाता है। दिस इज द ग्रीन expand part of the leaf. It is supported by veins and veinlets. The prominent vein which runs in the middle, this is called as midrib, and this whole portion is called as lamina. ये midrib होता क्या है? एक्चुअली ये xylem phloem की बनी होती है, veins भी xylem phloem की बनी, इनका काम होता है to carry the water and minerals to the leaf and also the food which is prepared during the process of photosynthesis by the leaf to other parts of the plant. These veins and veinlets are actually the xylem phloem. और यहाँ पे हमने पढ़ा petiole. ये petiole है क्या? Slender stalk that joins the leaf base with the leaf blade. leaf base को leaf blade से या lamina से जोड़ता है, इसे हम कहते हैं petiole. इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है इसकी? It holds the leaf blade above the level of the stem so as to provide sufficient sunlight to the leaf. It holds the leaf blade above the level of the stem so as to provide sufficient sunlight to the leaf. Petiole also allows leaf blade to flatter in wind. It also allows leaf blade to flatter in wind and thus produces cooling effect in the leaves by bringing fresh air to the leaf surface. This is all about the structure of the leaf. This structure होता क्या है leaf का? हमने पढ़ा क्या है, ये जहाँ पे लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ नोड पे, उसको लीफ बेस कहा जाता है। उसके ऊपर वाले हिस्से को जिसे फिर लेमिना अटैच रहता है, इसे हम पीटियोल कहते हैं या मेसोपोडियम भी कहा जाता है। और ये ग्रीन पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड एज लेमिना। लेमिना एक वेन होती है, इट इज़, इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। जो सेंटर वाली है उसको हम मिडरिब कहते हैं और जो फिर साइड में निकलती हैं उनको वेन्स कहा जाता है। दिस इज़ द मार्जिन। और शेप जो है लीफ की इट इज़ डिफरेंट, इट वेरीज। लेमिना जो है इट वेरीज, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ incision of lamina varies in different leaves. Now we will move to the venation. What is venation? Venation क्या है? Venation is actually the arrangement of the veins and veinlets in the lamina. ये arrangement जो veins और veinlets का arrangement है in the lamina, इसको हम कहते हैं, या lamina and leaf blade, इसको हम कहते हैं venation. This venation occurs in two ways. एक reticulate venation, दूसरा parallel venation. आपने जो बड़े बड़े प्लांट देखे हैं जैसे मुझनडी डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में क्या होता है, अगर हम देखेंगे ये आम का प्लांट, आम का पता, इसमें क्या होता है, सेंट्रल में मिडरिब और यहाँ से निकलती हैं वेन्स। ऐसी वेनेशन को कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। इट जनरली ऑकर्स इन डाइकॉट्स। एग्जाम्पल है पीपल है, हिबिस्कस है, लुफा है। और दूसरी है पैरेलल वेनेशन। अगर आपने देखा होगा वीट का प्लांट, वीट के प्लांट में क्या होता है, दिस इज द लीफ ऑफ द वीट प्लांट, यहाँ पे मिडरिब है सेंटर में, और जो वेन्स निकलते हैं दे आर पैरेलल टू दिस मिडरिब। इसी तरह से ये वेन्स भी ऊपर जाते हैं पैरेलल टू द मिडरिब, इसे कहा जाता है पैरेलल वेनेशन। दिस पैरेलल वेनेशन जनरली ऑकर्स इन मोनोकाट्स। को हमने वेनेशन में क्या पढ़ा, वेनेशन है क्या, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज टर्म्ड एज वेनेशन। वेन्स एंड वेनलेट्स किस तरह से होते हैं, इसको हम वेनेशन कहते हैं। इट ऑकर्स इन टू वेज।
इन डाइकाट्स वी सी मोस्ट जनरली वी सी रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है? ये मिड है और इस तरह से वेनलेट्स निकलती हैं मिड से ही। ये जनरली देखा गया है पीपल में, हिबिस्कस में, लुफा में। और दूसरी वेनेशन क्या है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन क्या है? अगर आप, ये जनरली देखा गया है इन मोनोकार्ड्स। अगर आप वीट का प्लांट देखेंगे तो वहाँ से वहाँ उसके पत्ते में जो है जिस मिड रिप, छोटा सा लीफ होता है उसका मिड रिप, और जो वेन्स निकलती हैं दे आर पैरेलल टू दिस मिड रिप। इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन एंड दिस हैज बीन सीन इन मोस्टली मोनोकार्ड्स, जैसे कि बनाना है, वीट है। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। सिंपल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स विच ऑकर इन नेचर आर सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या देखना है? ये इन विच द लीफ ब्लेड इज नॉट डिवाइडेड, जिसमें लीफ ब्लेड डिवाइड नहीं है, उसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। अगर इंसेशन भी है, लेकिन वो इंसेशन जो है जिस तरह से यहाँ इंसेशन दैट डज नॉट टच द मिड रिब, अगर ये इंसेशन भी है लेकिन ये मिड रिब को टच नहीं करते हैं, ऐसे लीव्स को कहा जाता है सिंपल लीव्स। हाँ, अगर लीफ में छोटे छोटे लीफलेट्स निकले हैं इस तरह से, यानी इंसेशन टच करती है सेंटर को, मिड रिब को, इंसेशन टच करती है मिड रिब को, तब हम इसको कहते हैं कंपाउंड लीफ। और जिसका मिड रिब है उसमें इस मिड रिब को हम रैशेस कहते हैं, इसमें रैशेस कहते हैं। जहाँ तक इस वो सिंपल लीफ में क्या है कि सिंपल लीफ में आपको ये याद रखना है, जिन लीफ इन विच लीफ ब्लेड इज नॉट डिवाइडेड आर, जिसमें लीफ ब्लेड डिवाइड एज गमस की, अगर वो डिवाइड गमस आर व्हेन incision should incised, the incisions does not touch the midrib bud at the axil of the petiole, it has bud at the axil of the petiole। जिस तरह से ये डायग्राम है, ऐसे लीफ होंगे, ऐसा होगा, लेकिन इंसेशन मिड को टच नहीं करती होगी, तब हम इसको कहते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या है कि अगर ये इंसेशन टच करेगी मिड को, तब हम इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं, यानी कि मिड को जब टच करेगी तो लीफलेट्स बन जाएंगे, इसको हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में मिड को रैशेस कहा जाता है। कंपाउंड लीफ भी दो किस्म के होते हैं, एक पिनेटली कंपाउंड, जैसे कि नीम में ये लीफलेट्स बने हुए हैं इस तरह से, दिस पिनेटली कंपाउंड। अब आप कहेंगे कि ये लीफलेट्स कहाँ हैं? लीफ ही हैं। लीफ की पहचान ये है कि लीफ में ऑक्सिलरी बड होता है, ऑक्सिलरी बड, तब हम उसको लीफ कहते हैं। लीफलेट्स में ऑक्सिलरी बड नहीं होता है, इसलिए हम इनको लीफलेट्स कहते हैं। ऑक्सिलरी बड लीफ पे होता है, यानी कि पैनेटली कंपाउंड लीफ इस शक्ल के होते हैं, जैसे कि नीम में। दूसरा है पैलेमेटली कंपाउंड। पैलेमेटली कंपाउंड क्या है कि लीफलेट्स जो हैं एक ही जगह से निकलती हैं, ये वाला, इसे हम कहते हैं पैलेमेटली कंपाउंड। लीफलेट्स जो हैं जुड़े हुए हैं एक ही जगह पे सारे, जैसे कि सिलिक कॉटन एग्जाम्पल है इसका, सिलिक कॉटन। दिस आर द कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स क्या दो किस्म के होते हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पैलेमेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड ये डायग्राम, और पैलेमेटली कंपाउंड जो है पैलेमेटली कंपाउंड लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट। In pinnately compound leaf, the midrib forms a common axis. This is a midrib, it forms a common axis. इस common axis को कहा जाता है rashes. A number of leaflets are present on rashes. Number of leaflets. देखिए rashes में number of leaflets present होते हैं, लेकिन palmately compound leaf में क्या है? In palmately compound leaf, the leaflets are attached to a common point.
that is at the tip of the petiole. This is the petiole. इसके टिप पे एक ही पॉइंट पे तमाम leaflets attached हैं. The tip of the petiole bears all the leaflets in the form of bunch or cluster, we can say. इसका example है silk cotton. This is about the types of leaves. And tomorrow we will discuss in our next topic phyllodoxy and modification of the leaf. Thank you very much.